Hello students, today I am going to teach you ICT for paper 1 UGC. ICT, you know, it is a part of computer science subject, and from this subject questions are like from sometimes the questions are from very basic and sometimes the questions are very lengthy and tricky. So I will start from the basic question. Like the first question is, the term bit is short for. Bit is the short form of binary digit. Which of the following is an example of email protocol? You know that a protocol is a set of rules which is used to govern the exchange of information in internet services. We have different type of protocol. For example, here we have HTTP, hypertext transfer protocol, which is used to transfer file from client computer to server computer. Then we have file transfer protocol, which is used to transfer files. HTTP is used when we browse the internet, like I used to open Google and I typed something I want to search, then there will be a request sent from my client computer to the server computer. Like that, there will be acknowledgement will be there and I will be authenticated based on my correct password. POP3 and HTML. HTML, you know, is the hypertext markup language. So which is an example of email protocol? So POP3, post office protocol, is an example of email protocol. If there will be a question like which protocol is used to transfer mail, then it will be simple mail transfer protocol. Which of these is not a web browser? Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. You can see these three are the web browser. Only Linux is not a web browser. Linux is an operating system. IP address is used to. Internet protocol is again a protocol. It is used to locate a website, identify a device on a network, block malware and store data. So block malware, we have firewall. Locate a website, no, we have uniform resource locator. So we have the answer will be identify a device on the network. IP एड्रेस किस लिए यूज़ होता है? किसी डिवाइस को उसके नेटवर्क में पहचानने के लिए. हर कंप्यूटर का अलग अलग IP एड्रेस होता है जिससे कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का एक्सचेंज होता है. DNS किस लिए यूज़ होता है? DNS इज़ यूज टू, इसके फुल फॉर्म से ही इसका डेफिनेशन है, डोमेन नेम सिस्टम is used to transfer file, convert domain name into IP address, provide security to email, filter spam email. So DNS is used to convert domain name into IP address. DNS क्यों यूज़ होता है कि डोमेन नेम को ये IP एड्रेस में कन्वर्ट कर दें. स्वयं किस लिए यूज़ होता है? इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम फॉर एग्रीकल्चर, नो. इज़ अ डिजिटल लिटरेसी कैंपेन, नो. इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय MHRD, यस. स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप डिपार्टमेंट. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है. NKN क्या है? NKN स्टैंड्स फॉर नेशनल नॉलेज नेटवर्क, यस. NKN स्टैंड्स फॉर नेशनल नॉलेज नेटवर्क. Which Indian initiative provide free online access to academic content? We have NDL, National Digital Library, means provide the online access to academic content. तो online access की बात हो रही है, तो access हम किस में करेंगे? हम डिजिटल चीज़ों में करेंगे, तो उसके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. द टर्म मॉक स्टैंड्स फॉर. मॉक किस लिए? मॉक का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड मॉडर्न ओपन online curriculum. So it will be massive open online courses. MOOC stands for massive open online courses. Emerging trends and concepts से question है अब. So the question is, cloud computing mainly depends upon. Cloud computing की किस पे डिपेंड करता है? लोकल सर्वर पे, सेंट्रलाइज डेटाबेस पे, इंटरनेट पे एंड माइक्रो प्रोसेसर पे. सो क्लाउड कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन इंटरनेट. अभी जैसे हम गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, तो अगर हमारी नेट की स्पीड स्लो होती है तो हम डेटा स्टोर नहीं कर पाते.
तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग ह्यूजली डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट। एंड स्पीड के लिए आपके पास राउटर्स है कि नहीं, आपने अच्छे से इंटरनेट कनेक्शन के लिए ऑल द अरेंजमेंट्स किए हैं कि नहीं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल? फायरवॉल क्या करता है? स्कैन फॉर वायरसेस, प्रोवाइड ईमेल सर्विसेज, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क, स्टोर बैकअप डेटा। फायरवॉल का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क। अनऑथराइज फायरवॉल मतलब कोई भी अनऑथराइज अकाउंट या अनऑथराइज ईमेल हमारी अकाउंट में अगर आता है तो उसे वो प्रिवेंट करता है। इन कंप्यूटिंग फिशिंग रिफर्स टू, फिशिंग क्या होता है? व्हाट इज़ फिशिंग? इट इज़ अ पार्ट ऑफ थ्रेट, साइबर थ्रेट। फिशिंग क्या है? अ मेथड टू कैच बग इन अ सॉफ्टवेयर, a cyber crime to steal sensitive information, a program update और a file sharing method। तो फिशिंग क्या है? एक साइबर क्राइम है जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की चोरी होती है। साइबर क्राइम टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ फिशिंग? साइबर क्राइम है जिसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की चोरी करता है। नाउ आईसीटी से क्वेश्चन AR के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में। असर्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ यूज़र टू एक्सेस एप्लीकेशन एंड डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन। तो ये ट्रू लग रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट एंड नॉट ऑन लोकल सर्वर। अब इसमें क्या होगा? बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट एंड नॉट ऑन लोकल सर्वर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग लोकल सर्वर पे नहीं चलता, इंटरनेट पे चलता है। नेक्स्ट है फायरवॉल हेल्प इन प्रिवेंटिंग वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग द सिस्टम। दैट इज करेक्ट। फायरवॉल मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। A, no, first is not correct. A is false, R is true. Firewall help in preventing viruses from entering the system। अभी हमने पढ़ा था फायरवॉल का डेफिनेशन ऊपर में कि वायरस को प्रिवेंट नहीं करता, ये कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है। स्वयं प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन थ्रू MOOCs। स्वयं क्या करता है? प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन थ्रू MOOC and Swayam is an initiative of UGC to promote online education. Both A and R are true and R is the correct explanation of A। मतलब Swayam provide access to quality education through MOOC and Swayam is an initiative of UGC to promote online education, दोनों true है। HTTP ensure data encryption during transmission and region है HTTP is the secure version of web communication protocol। तो HTTP ensure data encryption during transmission and HTTP is a secure version। तो both A and R are false। HTTP ensure data encryption during transmission। HTTP कोई डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता है, जैसे आप डेटा भेजते हैं डेटा वैसे ही जाता है। HTTP is a secure version of web communication protocol। ये भी नहीं है HTTP इज़ नॉट सिक्योर। बहुत बार मैंने बताया कि HTTP के बाद अगर S होता है दैट इज़ HTTP सिक्योर, तब वो सिक्योर होता है। ईमेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ asynchronous communication and asynchronous communication occur in real time between users। A is true, R is false। email is an example of asynchronous communication, true है, and asynchronous communication occur in real life time between user, ये false है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज लाइसेंस्ड अंडर टर्म्स दैट अलाउ सोर्स कोड एक्सेस। बोथ आर ट्रू एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीली मॉडिफाइड और रीडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फ्रीली डाउनलोडेबल होता है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी होता है अंडर द टर्म्स दैट अलाउ सोर्स कोड एक्सेस। कोई भी इसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, फ्रीली डाउनलोडेबल हैं और हम उसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ करते हैं। IPv6 सपोर्ट अ लार्ज assertion is IPv6 support a large number of IP address than IPv4। इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये, इंटरनेट प्रोटोकॉल का टाइप्स है IPv4 एंड IPv6। IPv6 uses a 128-bit address format compared to 32-bit in IPv4। तो इसका होगा बोथ आर ट्रू एंड
रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन, मतलब IPv4 सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ IP एड्रेस देन IPv4 and IPv6 uses a 128-bit address format compared to 32-bit in IPv4. That is also correct. So students, these are few of the questions of ICT which I thought are important and I made a video out of it. You must go through it to learn and understand, and if you want to attempt, these question will surely help you. जैसे क्या होता है, आई एम गोइंग थ्रू मैनी वीडियोज़ एंड वॉचिंग मैनी वीडियोज़, जिसमें आधे टाइम तो वो क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता, आधे टाइम दे यूज़ टू किल आवर टाइम। तो इसलिए मैं बिना इधर उधर की बातें किए हुए मैं डायरेक्ट वीडियोस बनाती हूँ, ताकि मुझे पता है टाइम वेस्ट करने से कैसा लगता है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती और मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि बच्चों को डायरेक्ट उसके आंसर्स मिल सके क्वेश्चंस के। जो एग्ज़ाम्स में बैक टू बैक आए हैं, जैसे मैं भी एग्ज़ाम देती हूँ, आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, तो मुझे पता है ये क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, मॉक्स एंड स्वयं एंड STTP प्रोटोकॉल, फिर IPv4 IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल, फिर DNS, ये सबसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सो प्लीज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अटेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।